ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, 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 ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ 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 ਤਾਰੀਫ। Hallelujah, Lord. Praise the 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 Lord. Hallelujah, Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ Lord Jesus ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus। Hallelujah। ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਸਕੀਏ, ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ Lord Jesus ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ this meeting ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ Lord Jesus, hallelujah. ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। Lord Jesus ਅੱਜ this meeting ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ Lord Jesus। ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ Lord Jesus, hallelujah। ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus। ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ Lord Jesus ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ Lord, hallelujah, 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 praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਣਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ Lord Jesus ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਖੁਦਾਵੰਦ, hallelujah, hallelujah। Thank you Jesus Lord। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ Lord Jesus। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੇਜ਼। ਆਓ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰੀਏ, ਇਹੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ, ਇਹੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ। ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਏ, ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੀਏ, ਇਹੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ। ਆਓ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰੀਏ, ਇਹੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ। ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਏ। ਬੇਆਸਾਂ ਦੀ ਆਸ ਮਸੀਹਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਆਕਾ ਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਇਹੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ। ਆਓ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰੀਏ, ਇਹੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ। ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਉਸਨੂੰ ਹਰਦਮ ਸਜਦਾ ਕਰੀਏ, ਇਹੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ। ਆਓ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰੀਏ, ਇਹੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ, ਇਹੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ। ਆਮੀਨ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Thank you, Sister G. God bless you. Hallelujah, Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ, ਖੁਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਸਰੋਈਆ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। Praise the Lord. ਜੀ, praise the Lord ਜੀ। शुरू करते हैं। आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया। आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया। नूर से जिसके मुनव्वर दिल हमारा हो गया। नूर से जिसके मुनव्वर दिल हमारा हो गया। मुद्दतों से जिसकी आवाज़ के रहे थे मुंतज़िर। मुद्दतों से जिसकी आवाज़ के रहे थे मुंतज़िर। आज वो ही शाह-ए आलम आशिकारा हो गया। आज वो ही शाह-ए आलम आशिकारा हो गया। आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया। देखो जिसकी आरज़ू थी आज वो पैदा हुआ। देखो जिसकी आरज़ू थी आज वो पैदा हुआ। मालिके हर दो जहां का अब नज़ारा हो गया। मालिके हर दो जहां का अब नज़ारा हो गया। आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया। चहचहाते बाग में है आज गुलज़ारे चमन। चहचहाते बाग में है आज गुलज़ारे चमन। आ गया है बाग का गुलशन हज़ारा हो गया। आ गया है बाग का गुलशन हज़ारा हो गया। आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया। एक तरफ हो मसीही कुछ नहीं खौफ व फ़क़र। एक तरफ हो मसीही कुछ नहीं खौफ व फ़क़र। दामे सीना अफ़ज़ली का पारा पारा हो गया। दामे सीना अफ़ज़ली का पारा पारा हो गया। आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया। आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया। नूर से जिसके मुनव्वर दिल हमारा हो गया। नूर से जिसके मुनव्वर दिल हमारा हो गया। Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. और ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ verse ਪੜੂੰਗੀ। हे ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਬੀਨ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੱਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗਾ।
ਮੈਂ ਡੱਫ ਵਜਾ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡਾ ਹਰ ਵਕਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਰ ਨੀਲਮ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਸਟਰ ਨੀਲਮ ਜੀ। प्रेज लॉर्ड। जी, प्रेज द लॉर्ड। सुना में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है, ये सुना में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। जो चश्मा कलवरी से बहता है, जो चश्मा कलवरी से बहता है, वो आज भी पापों को धोता है, वो आज भी पापों को धोता है। ये सुना में कुदरत पाई जाती है, वो कोड़ियों को पाक करता है, वो कोड़ियों को पाक करता है, और मुर्दे जिंदा करता है, और मुर्दे जिंदा करता है। ये सुना में कुदरत पाई जाती है, वो अंधी आंखें खोलता है, वो अंधी आंखें खोलता है, और लंगड़ों को चलाता है, और लंगड़ों को चलाता है। ये सुना में कुदरत पाई जाती है, वो गुनहगारों को बुलाता है, वो गुनहगारों को बुलाता है, और दिल में शांति भरता है, और दिल में शांति भरता है। ये सुना में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Hallelujah, praise the Lord. Thank you, sister जी। Hallelujah, praise the Lord। खुदा धन्यवाद। मैं एक वर्स पढ़ूंगी। प्रभु परमेश्वर इस्राएल ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਧਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਸਕੀਏ, ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, hallelujah, praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shindi bora 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 ziri biri gara bara 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 shara bara. Hallelujah, hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah, Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ Lord Jesus. Hallelujah. ਓ ਮਹਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Lord Jesus। Hallelujah, Hallelujah, Lord Jesus। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਹੂ ਚ ਛਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ Lord Jesus। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus
ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੀਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਣਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 30 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ 60 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 30 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ 60 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲਾਰਡ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਬਚਨ ਦੇ ਥਰੂ ਖੁਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ और अगे मैं सिस्टर शहीन उन्होंने इनवाइट कर दिया सिस्टर जी सानू अगे लीड करेंगे सिस्टर जी जी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू सनिया खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपके ऊपर अपने हाथ को बढ़ाए रखे और खुदावंद अपने आप को सीने से लगा के रखे अपने परों में छुपा के रखे और खुदावंद हर मुश्किल परेशानी दुख तकलीफ पे गालिब आने का आपको फजल दे जोर दे ताकत दे और आप हमेशा अपने किरदार से अपनी बोलचाल से अपने बिहेवियर से उसके सर को हमेशा कुचलते रहें रोज रोज अपनी जंगें जो लड़ते हैं फतह पाते रहें गॉड ब्लेस यू हम रोटी और पानी के लिए दुआ करेंगे खुदा उन तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ है बाप खुदा तेरा शुक्र करते हैं यसु तेरे लहू बहाने के लिए खुदा तेरे कोड़े खाने के लिए खुदा जो यसु हमने कोड़े खाने थे जो मौत हमने मरनी थी जो जिल्लत जो रुसवाई हमने उठानी थी खुदा यसु वो सब तूने हमारी खातिर उठा ली ताकि हम आज़ाद हो जाएं हम बहाल हो जाएं हम खुशहाल हो जाएं खुदा हम उस शैतान की कैद से बच जाएं रिहाई पाएं खुदा यसु तेरा शुक्र करते हैं कि तू ज़मीन पे आया तूने जान दी ताकि खुदा हम तेरे इस गला खाने में दाखिल हो सके खुदा तूने हमें चुन लिया अपनी दुल्हन के तौर पे खुदा यसु हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा हम में कोई ऐसी बात नहीं कोई ऐसी खूबसूरती नहीं है कोई ऐसी काम नहीं है हमारे ऐसे कि खुदा तू हमें चुनता यसु लेकिन खुदा ये तेरा हमारे पर रहम था तरस था कि खुदा तूने हमें दुनिया से अलग कर लिया तूने हमें अपना बना लिया ताकि खुदा यसु जब तू आए तो हमें अपने साथ लेके जाए खुदा तूने हमें अपने पाकरू के फलों से पाकरू की नेमतों से भरा खुदा यसु तेरा शुक्र करते हैं खुदा तुमने अपने खुदा पाक रूह को बख्शा जो हमें तैयार कर रहा है जो हमारा मददगार है खुदा यसु तेरी इस फिक्र के लिए तेरी इस मोहब्बत के लिए खुदा यसु तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा तू नहीं चाहता कि हम गिरे रहें हम शैतान की कैद में रहें हम बीमारियों में दुखों में तकलीफों में जिंदगी गुजारें खुदा यसु तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपना जोर देता है अपनी ताकत देता है अपनी हिकमत देता है ताकि हम इसकी मक्कारियों को इसके जालों को इसके कामों को समझ सके इसके तीरों का इसके जलते हुए तीरों का मुकाबला कर सके खुदा और खुदा यसु तूने हमें इख्तियार दिया कि इसको रोज ही हर पल अपने पांव तले कुचलते रहें और खुदा यसु तू चाहता है कि जिस तरह तूने गलबा पा के इस शैतान को हरा के अपने पांव तले कुचल के खुदा इसकी सारी मक्कारियों पे गलबा पा के खुदा यसु इसकी आजमाइशों पे गलबा पा के खुदा यसु तू जीत हासिल करके खुदा अपने तख्त पे जाके बैठ के अपने बाप के साथ खुदा वही मसा वही बुलाहट वही कॉलिंग खुदा वही इख्तियार खुदा तूने हमें दिया ताकि हम भी शैतान पे फतह पा के उस जगह तक पहुंच सके उस तख्त तक पहुंच सके
खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं और इस तेरे गहरे भेद के लिए, इस गहरे मकाशफात के लिए जो खुदा हम तू रोज रोज हम पे खोल रहा है। खुदा हम तू अपने दिल की बातें हमारे साथ कर रहा है, जिस तरह तू चाहता है। खुदा वो बातें जो हमारे अंदर हैं अभी, जो गंदी हैं, जो तुझे नापसंद है, जिनसे तुझे नफरत है, खुदा तू हमें बता रहा है, तू हमें सिखा रहा है कि हमें भी अपने अंदर से अपने दिल को साफ करना है, अपनी सोचों को साफ करना है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तू वो हमारे ऊपर वो तेल, वो मसाले वो लगा रहा है। खुदा वो अपना मसा उंडेल रहा है कि हम उसके जोर से, उसकी ताकत से, उस मसा के वसीले से खुदा हम शैतान पे फतह पाए, और जो भी हमारी जिंदगी में वो आजमाइशें लेके आता है खुदा रोज 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 खुदा हम उस पे फतह पाते जाए। खुदा हम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदा हमारे ग्रुप के ऊपर। खुदा हम तेरी इस खास मेहरबानी के लिए ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं, एक एक को यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ, एक एक के घर के चुके खुदा हम तेरे आछी रथों का पहरा लगाती हूँ। तेरे निगहबान, तेरे पाक फरिश्ते, तेरे जंगजू, तेरे सुरमा फरिश्ते, तेरे जबरदस्त फरिश्ते, तेरे हीलिंग वाले फरिश्ते, तेरे मसाफत वाले फरिश्ते, खुदा हम यीशु एक एक के ऊपर मुकर्रर कर देती हूँ कि वो हम सब की हिफाजत करें, निगहबानी करें, हमारी तरफ से होके जंग करें। खुदा हम किसी बीमारी में ना पड़े रहें। खुदा जो बीमार हैं, खुदा तू छू उनको, खुदा टच कर, खुदा शिफा बख्श दे खुदा, ताकि नया जोर, नई ताकत हासिल करके खुदा शैतान पे फतह हासिल करके खुदा हम तुझ में बढ़ते जाए, हमारा ईमान तुझ पे बढ़ता जाए। खुदा हम तुझ में गहरे होते जाए, तुझ में जुड़े रहें, ताकि बहुत सा फल लेके आए। खुदा शैतान हमें किसी भी जरिए से कमजोर ना करने पाए, हमारे ईमान को कमजोर ना करने पाए। हम दो दिले ना रहें खुदा, हम तुझ में कायम रहें। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, एक एक के लिए जो इस वक्त मीटिंग में मौजूद है, जो नहीं आए खुदावंद, जो आना चाहते हैं और जिनकी रास्ते में खुदावंद शैतान रोड़े अटका रहा है, उसकी फौजें खुदा उनको आने नहीं दे रही। खुदा यीशु के नाम से खुदा तेरे जंगजू फरिश्ते उनकी तरफ से हो के जंग लड़े, और खुदा जो आना चाहते हैं खुदा उनके लिए दरवाजे खुल जाए खुदा यीशु के नाम से, ताकि वो भी आए और तेरी आवाज को सुने, तेरे दिल की बातों को जाने खुदा कि तू हमसे क्या चाहता है। तेरा शुक्र करती हूँ खुदा तेरे इस प्लान के लिए खुदा। खुदा जब हम इस पानी को पिए जो कि तेरे लहू में तब्दील हो गया है, जब हम इस रोटी को लें खुदा जो कि तेरे बदन में तब्दील हो गई है, तो खुदा हमारे जिस्मों के अंदर बाहर बैरूनी कोई प्रॉब्लम है, या हमारे जिस्म के अंदर कोई अंदरूनी बीमारी है, खुदा यीशु के नाम से कोई एलर्जी है खुदा, खारिश की स्पिरिट को खास तौर पे खुदा, चेस्ट इन्फेक्शन की खुदा कोई लिवर की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बीमारियां पैदा हो रही हैं खुदा, खून की खराबी की वजह से बीमारियां पैदा हो रही हैं खुदा, यीशु के नाम से खुदा इन सारी बीमारियों को जो खून की खराबी से, लिवर की प्रॉब्लम से खुदा हमारे बदनों के अंदर आ गई हैं खुदा यीशु के नाम से उनको निकल जाने का हुक्म देती हूँ। कोई खून की कमी है हमारे बदन के अंदर खुदा, यीशु के नाम से खुदा वो हमारी कमी तेरे यीशु लहू से पूरी हो जाए खुदा यीशु के नाम से खुदा हम पहले जैसे ना रहे खुदा, यीशु के नाम से आमीन सर से लेके पांव के तलवे तक खुदा में एक एक के अंदर खुदा जो भी बीमारी है, जो भी खून की खराबी की वजह से खुदा यीशु के नाम से हमारे बदनों के अंदर तेरा शफा बख्श खून दौड़ जाए खुदा, वो गंदा खून, आमीन वो आमीन बीमारियां पैदा करने वाला, वो हरामकारियां, जनाकारियां खुदा, झूठ, फरेब, हसद पैदा करने वाली जो बीमारियां हैं, जो बदरूहें हैं हमारे अंदर काम कर रही हैं, यीशु तेरे नाम से हमारे बदन के अंदर से निकल जाए खुदा। यीशु के और नाम जो भी कमी आ गई है हमारे बदनों के अंदर खून की खुदा, या खराबी आ गई है किसी भी वजह से खुदा, खास तौर पे हमारे ग्रुप में जितने भी जिनको स्किन एलर्जी है खुदा खारिश की है खुदा कोई दानों की स्पिरिट है खुदा, यस्सु के नाम से इन सारी बदरूहों को खुदा मैं तेरे यस्सु नाम से खुदा तेरे
जोर से तेरी ताकत से उसके हाथों और पाँव में बेड़ियां पहनाती हूँ और अपने ग्रुप के यीशु के एक नाम एक से, मेंबर के आमीन, अंदर से आमीन, निकल जाने का हुक्म देती हूँ यीशु के नाम से। खुदा यीशु खुदा के कभी नाम वापस ना आना, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, तुम यस पे ओले और अंगारे गिरे, बिजलियां गिरे यीशु के नाम यीशु में, के नाम से। खुदा खुदा कभी वापस ना आना खुदा खुदा, यीशु तेरे नाम से खुदा खुदा बदरूहों को आग लग जाए खुदा खुदा, यस किसी लॉर्ड, भी तरह यीशु के से खुदा नाम, हमारे बच्चों को, हमारे बहन भाइयों को, इस ग्रुप में जितने भी हैं खुदा उनको सताने ना पाए खुदा खुदा, उनके बदन के अंदर जो भी खुदा खुदा खारिश है खुदा खुदा, जो तकलीफ है उनको, जिस सिचुएशन में से वो गुजर रहे हैं खुदा, तू जानता है, तू सब जानता है खुदा खुदा। खुदा उनको आज ही इसी वक्त टच कर खुदा खुदा, ताकि वो खुदा तेरी शुक्रगुजारी कर सके खुदा, आज उनको आराम मिले, आज उनको सुकून मिले, तसल्ली मिले, आमीन, वो मीठी नींद सो सके खुदा खुदा। आमीन, खुदा तेरा यीशु के कलाम नाम, फरमाता है कि सौ जावांगा मैं निश्चय नाल खुदा खुदा, यस वो आज लॉर्ड, वही यस लॉर्ड, मीठी नींद खुदा तेरे उन बच्चों आमीन, को आए, ये एलर्जी की स्पिरिट उनको तंग ना करने पाए खुदा खुदा, तकलीफ ना देने पाए, अजियत में ना वो रहें खुदा। यीशु के नाम से आज जितनी भी खुदा खुदा हमारे ग्रुप में इस तकलीफ में से गुजर रहे हैं खुदा, यीशु के नाम से खुदा, सब के लिए मैं तेरी आजादी को, तेरी बहाली को खुदा मांगती हूँ, तेरे आराम को, तेरे सुकून को मांगती हूँ खुदा, यीशु के आमीन, नाम से। आमीन, बदन के अंदर सुकून आ जाए खुदा, यीशु के नाम से आमीन, तसल्ली आ जाए नाम खुदा खुदा। आज तेरे बच्चे आजादी को खुदा खुदा रिसीव करें यीशु के नाम से खुदा, और जिनके बदनों के अंदर खून की कमी है वो यीशु के नाम से पूरी हो जाए खुदा खुदा। यीशु के यीशु नाम तेरे नाम से खुदा खुदा कभी भी दोबारा उनको खून की कमी ना हो, जो स्पिरिट खुदा उनके खून को यीशु चूस के रही है नाम खुदा खुदा, खुदा खुदा चमगादड़ की स्पिरिट को मैं यीशु के नाम से यीशु उनके के नाम बदनों में, के अंदर से निकल यीशु के जाने का नाम में, हुक्म देती हूँ खुदा खुदा, यीशु वो के नाम कभी में, यीशु के वापस ना आए नाम खुदा से खुदा। यीशु के यीशु नाम के में, नाम से खुदा खुदा in the तेरी name खून of Jesus, की जो कमी है वो तेरे खून से पूरी हो जाए खुदा खुदा। जितना amen, बॉडी को यीशु के खून नाम, चाहिए यीशु के यीशु नाम के से, नाम उतना हमारी बॉडी बॉडी में खुदा खुदा खून बनना शुरू हो जाए खुदा खुदा, यीशु के नाम से खुदा खुदा। और अबलीस का कोई वार चलने ना पाए, मैं उन सारे दरवाजों को बंद कर देती हूँ खुदा खुदा, कि वो वापिस कभी ना आने पाए खुदा, उनका सत्यानाश हो जाए खुदा खुदा, यीशु जड़ के से नाम उनका में, खात्मा हो जाए खुदा खुदा, वो समुद्र की तह में गर्क हो जाए खुदा खुदा। यीशु के यीशु नाम के में, नाम से जो हमारे बदनों के अंदर आके खुदा खुदा बीमारियों को पैदा करती हैं, जो दाने लेके आती हैं, जो खारिश को लेके आती हैं खुदा खुदा, जो किसी भी किस्म की एलर्जी को लेके आती है खुदा, यीशु के नाम से आज के बाद खुदा खुदा वो कभी भी आने ना पाए खुदा। यीशु in the तेरे name of जोर से, तेरी Jesus, ताकत yes, से खुदा खुदा, ये हमारे ग्रुप में खुदा खुदा जिनके कोई लिवर की प्रॉब्लम है, मैदे की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है खुदा खुदा, बुखार की, चेस्ट इन्फेक्शन की, लंग्स की प्रॉब्लम है खुदा खुदा, गले का इन्फेक्शन है खुदा, बुखार है खुदा, यीशु के नाम से खुदा इन सारी स्पिरिट को, इन सारी बदी की कुव्वतों को खुदा खुदा तेरे यीशु नाम से अपने ग्रुप के अंदर से, एक एक मेंबर के अंदर से निकल जाने का हुक्म देती हूँ यीशु यीशु के के नाम नाम से में, खुदा। खास तौर पे मैं स्मेरा को और नैयर को खुदा यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ, अपने बच्चों को मुकम्मल शिफा दे खुदा खुदा। स्मेरा की amen, जो भी amen, चेस्ट amen, इन्फेक्शन है खुदा खुदा, गले की प्रॉब्लम है, बुखार है खुदा खुदा, खुदा सीने की खुदा प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से खुदा तेरी बेटी यीशु के मुकम्मल नाम शिफा पाए खुदा। इन सारी amen, बदी की कुव्वतों को खुदा उसके हाथों और पाँव में बेड़ियां पहनाती हूँ, और खुदा यीशु के नाम में, सुमेरा के बदन के अंदर से निकल जाने का हुक्म देती हूँ यीशु के नाम से। तेरी यीशु के बेटी नाम में, यीशु के मुकम्मल शिफा नाम पाए से खुदा उसके खुदा सारा amen, amen, बुखार, खुदा सारा गला, लंग्स खुदा यीशु के नाम से हील हो जाए खुदा, और amen, खुदा यीशु तेरी के नाम, बेटी मुकम्मल शिफा को, बहाली को, आजादी को रिसीव करे खुदा। और खुदा यस ये तेरी बेटी के जो बुखार है, बुखार की बदरूह को यीशु के नाम से निकल जाने का यीशु हुक्म के यीशु देती के हूँ नाम, नाम से यीशु। आज तेरी बेटी मीठी नींद सोए खुदा तुझ में amen, amen, मुकम्मल उस तसल्ली को, ईमान इत्मीनान को हासिल करे खुदा यीशु के यस नाम से खुदा। yes, और खुदा Lord, यस तेरी बेटी शुक्रगुजारी करे कि मेरे यीशु ने, yes, Lord, मेरे yes, खुदा Lord, ने, yes, मेरे मालिक ने yes, Lord, मेरे लिए बड़े बड़े काम किए खुदा। amen, खुदा amen, यीशु amen, के नाम से खुदा आज ही खुदा तू सुमेरा को टच कर खुदा हील amen, कर खुदा, amen, मुकम्मल yes, Lord, शिफा दे yes, खुदा। Lord, yes, Lord, नैयर को भी यस खुदा उसका बुखार उतर जाए यीशु के नाम से खुदा। यीशु के नाम और यीशु तेरा के बेटा नाम मुकम्मल शिफा
उसको रिसीव करे खुदा यीशु के नाम से खुदा यीशु खुदा के नाम में। यस लॉर्ड, यीशु के नाम में। और सैमुअल को, रूथ को खुदा सिस्टर अमनदीप के बेटों को खुदा यीशु के नाम से खुदा तेरे खून में यीशु के छुपाती हूँ नाम खुदा। आसफ की जो ख्वाहिश है, सरफीन के जो ख्वाहिश है, यीशु के नाम से ये दोबारा कभी ना आने पाए के खुदा। नाम यीशु के सारा नाम के से। जो यस दाने लॉर्ड, हैं खुदा और साना और समर की जो खून की कमी है खुदा यीशु नाम से वो पूरी हो जाए। और सारी यीशु के खून की नाम खराबी आमीन, जिसकी वजह आमीन। से सारा के दाने होते हैं, यीशु के नाम से वो मुकम्मल तौर पे यीशु के हील नाम हो जाए खुदा। और खुदा तेरे आमीन, यीशु बच्चे के नाम में। तेरी शुक्रगुजारी करें खुदा तेरे यीशु नाम के को नाम, ऊंचा करे खुदा। इनके बदनों से यस यीशु तेरे नाम को जलाल मिले खुदा। यीशु तू इनकी जिंदगी में चलता फिरता नजर आ खुदा। आज के बार खुदा ये बीमारियां खुदा कभी वापिस ना आए खुदा। उन सारे सुराखों को, दरवाजों को, खिड़कियों को, रोशनदानों को बंद कर देती हूँ खुदा तेरे लहू से, तेरे नाम से खुदा यीशु के नाम से खुदा पाक खून की कवरिंग में दे देती हूँ खुदा यीशु के नाम से। तेरा कुवत वाला, तेरा ताकत वाला लहू खुदा तेरे बच्चों की हिफाजत करे, हम सब की हिफाजत करे खुदा। और प्लीज जब भी आए खुदा वो मुंह की खा के गिरे खुदा वो पछाड़ खाए खुदा यस उसको लॉर्ड, आग लग यस जाए लॉर्ड, खुदा वो जब भी यस हमारी लॉर्ड। तरफ देखे उसके खुदा उस आंखों को निकाल देते हैं जो हमें, यीशु के नाम में, जो हमारी तरफ बुरी नजर से देखता है खुदा यीशु के नाम से खुदा उन आंखों को निकाल देते हैं, उन हाथों को यीशु के काट नाम देते हैं, उन बाजुओं के काट देते हैं, उसके सारे जोर को, उसकी सारी कुदरत को खुदा मलिया मेट कर देते हैं खुदा। उसकी यीशु के दुश्मन नाम की में, फौजें यीशु के खुदा नाम में, पानी की तरह बह जाए खुदा। यीशु के दुश्मन की नाम में। फौजें आमीन, आमीन। खुदा हमारी तरफ बढ़े तो खुदा उसको आग लगे खुदा उसको कुड़े वो खुदा यस उसको लॉर्ड, यस शर्मिंदा होना पड़े खुदा यीशु के नाम से खुदा। जिस तरह खुदा तेरे इसराइली कौम पे जब खुदा दुश्मन की फौजों ने, मुआबियों ने, खुदा अमोनियों ने हमला किया तो खुदा वो आपस में ही लड़ना शुरू हो गए खुदा। इसी तौर से ये दुश्मन की फौजें आपस में ही लड़ना शुरू हो जाए खुदा। यीशु के नाम कंफ्यूजन में। पैदा होते यस खुदा लॉर्ड, यस यीशु के लॉर्ड, नाम यीशु से। के नाम और तेरा फरिश्ता इनको रगेदता जाए खुदा में। Yes, सफे Lord. हस्ती से मिटा दे खुदा यीशु के नाम से। और यीशु कभी के नाम में। ये हमारे ग्रुप के एक एक मेंबर के ऊपर खुदा कभी वापस ना आए खुदा यीशु के नाम से। यीशु तेरे के लहू में नाम, छुपा देती हूँ ग्रुप के एक एक मेंबर को खुदा यीशु के नाम से खुदा तेरे लहू में छुपा देती हूँ खुदा। जब हम ये इस पानी को पिए तो खुदा हमारी अंदरूनी जो बीमारियां हैं वो पानी की तरह बह जाए खुदा यीशु के नाम से। Yes, के नाम से वो आमीन। कभी वापस ना आए खुदा। और जब हम इस रोटी के लोए जो कि तेरे ने बदन हमारी खातर तोड़ा खुदा तो हमारे जो बैरूनी बीमारियां हैं, जो बदन के ऊपर हैं, जो स्किन की कोई प्रॉब्लम है, कोई हड्डियों की प्रॉब्लम है खुदा, हड्डियों में दर्द है खुदा यीशु के नाम से वो सारी बीमारियां खत्म हो जाए खुदा यीशु के नाम से Yes, खुदा। लॉर्ड, यस लॉर्ड, हमारा मैदा जो है वो सही फंक्शन करना शुरू हो जाए खुदा यीशु के लीवर नाम में, अपने यीशु के नाम में। सही उसका सिस्टम यस ठीक हो लॉर्ड, जाए खुदा यीशु के नाम यस से खुदा। लॉर्ड, यस लॉर्ड, आमीन। कोई भी मैदे की प्रॉब्लम है खुदा हमारे ग्रुप में किसी को भी है खुदा यीशु के नाम से खुदा वो सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए खुदा। और खुदा हम आमीन। सेहतमंद आमीन, तंदुरुस्त आमीन, यीशु के हों नाम, और खुदा तेरी तवानाई को हासिल करें खुदा यीशु के नाम से खुदा तेरा, ताकि खुदा तेरे जोर और तेरी ताकत को हासिल करते हुए Yes, हम हर Lord. पल हर कदम पे खुदा शैतान को अपने पांव तले कुचलते रहें खुदा यीशु के नाम से खुदा किसी भी तरह यीशु से के हमें नाम वो बीमारी में ला के खुदा हमें रूहानी तौर पे और जिस्मानी तौर पे कमजोर ना करने पाए खुदा। हम तेरे जबरदस्त सुरमा है, हम वो सिपाही हैं जो कभी पीछे नहीं हटते। हम फतह के झंडे हमेशा Yes, लहराते रहे खुदा और दुश्मन को आग लगती रहे। जब हम फतह के झंडे आमीन। लहराए खुदा तो दुश्मन को आग In the लगती रहे name of खुदा। Jesus. वो हमारी जिंदगी को जब देखे तो वो शर्मिंदा हो खुदा यीशु के नाम से। वो कभी भी खुश ना होने पाए Amen. हमारी जिंदगी को देख के खुदा। जब भी वो देखे उसको Amen. खुद शर्मिंदा होना पड़े खुदा यीशु के नाम से। वो कुव्वत, यस वो लॉर्ड, ताकत, वो जोर यीशु तेरी के नाम में। तवानाई की रूह में ग्रुप के एक एक मेंबर के लिए मांगती हूँ खुदा यीशु के नाम से खुदा। आज जितने भी यहाँ पे हम मौजूद हैं, किसी को भी कोई हड्डियों की प्रॉब्लम है खुदा, खास तौर पे जो
जिसको दर्दे हैं खुदा, जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द है, घुटने में खुदा, शोल्डर में दर्द है खुदा, पाँव में दर्द है खुदा, यीशु के नाम से खुदा सारी दर्द, कमर की दर्द खुदा, यीशु के नाम से आज खुदा इन सारी बदरूहों को मैं अपने ग्रुप के अंदर से एक एक मेंबर के अंदर से निकल जाने का हुक्म देती हूँ। यीशु के नाम से हाथों में दर्द है खुदा, यीशु के नाम से उंगलियों में दर्द है खुदा, यीशु के नाम से खुदा वो सारी दर्दें निकल जाए खुदा, ताकि हम तेरे जोरावर सुरमा खुदा और खुदा यीशु दुश्मन पे फतह पाते जाए खुदा उसके सारे इन तीरों का खुदा इन जलते हुए तीरों का जवाब देने के लिए हमारे पास तेरा कलाम हो खुदा हमारे पास तेरी तसल्ली का वो जो रूह की Yes, Lord. तलवार हमें तूने दी है खुदा हम उसको कहें कि हमारे यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया है, उसने हमें आजाद Amen. करने के लिए, Yes, हमें Amen. शफा देने के लिए अपने लहू अपने जिस्म के एक एक कतरे लहू जो है वो बहा दिया। इसलिए हम पे कोई बीमारी, कोई लानती बीमारियां हम पे रह नहीं सकती, हम पे ठहर नहीं सकती, हमारे बदनों के अंदर वो रह नहीं सकती खुदा। यीशु के नाम से हम yes, इस रूह की तलवार को चलाएं और खुदा दुश्मन शर्मिंदा होता रहे और परगंदा होते रहे yes, हमारी जिंदगियों से, और हम खुदा तेरे जोर से, तेरी ताकत से खुदा फतेहमंद जिंदगियां गुजारे खुदा और Yes, खुदा yes, ओवरकमर हो खुदा, ताकि उस तक पहुंच सके खुदा। यीशु के नाम से मैं एक एक के ऊपर खुदा आज खास तरह मसा जो है मांगती हूँ। जबकि हम Lord. Yes, इन दिनों hallelujah. रोजे में ठहरे हुए हैं तो खुदा तेरा कलाम फरमाता है कि ये जो ऐसी बदरूहें हैं जो रोजे और दुआ के बगैर नहीं निकल सकती, तो इन दिनों में खुदा वो रूहें भी, वो बदी की कुफ्ते भी जो खुदा ढीठ है, जो नहीं निकलती हमारे बदनों से, कहीं भी उसने जकड़ा हुआ है, तो खुदा हमारे ये रोजा रखने के वसीला से खुदा आज उन बदरूहों पे भी हम पता हासिल करें खुदा। यीशु के नाम यीशु से के के नाम से नाम में, yes, खुदा Lord. हम खुदा रोजा रखें पूरी तरह से, जिस तरह खुदा तू चाहता है उस तरह से हम रोजा रखें खुदा उस पाकीज़गी में बढ़े खुदा, उस ईमान में बढ़े खुदा उस हलीमी में बड़े खुदा जो खुदा तू हमें देखना चाहता है, वो खुसूसियात हमारे अंदर आ जाए, वो तेरा मिजाज हमारे अंदर आ जाए खुदा और खुदा आमीन शैतान किसी भी तरीके से खुदा हमारे ग्रुप के किसी भी मेंबर को खुदा टच ना करने पाए। जो भी इस Yes, मीटिंग में यीशु आते हैं, जो के नाम नहीं आते, उन सब के लिए खुदा ये मसा मांगती हूँ, ताकि खुदा हमारे ग्रुप के एक एक मेंबर को भी ये एहसास हो, उनकी भी ये रूहानी आंखें खुले कि इस जब हम ग्रुप में आते हैं, खुदा हम तेरी हुजूरी में आते हैं, तो हम दूसरों से निराले हैं, हम दूसरों से फर्क है, हमारे ऊपर एक खास अनाइंटिंग, एक खास मसा ठहरा हुआ है Amen. खुदा Amen. उनको ये यीशु Amen. उनकी ये Amen. रूहानी आंखें खोल दे खुदा उन पे Yes, ये Lord. आमीन गहरे मकाशफे खोल दे कि हम जब इस मीटिंग आमीन में आते हैं तो हमें वो तेरा नया जोर, नई ताकत मिलती है खुदा उनमें ये एक एहसास जो है, एक उनकी आंखें जो है वो खुल जाए, ताकि खुदा वो इस मीटिंग में आए, ताकि जो तू हमसे बातें करता है, जो मसा हमारे ऊपर रोज रोज उंडेलता है, वो जोर, वो ताकत हमें देता है खुदा, वो सब वो हासिल कर सके खुदा तू ख्वाबों में, रोया में कलाम कर यस खुदा यीशु के नाम से खुदा खास तेरा यीशु के मसा नाम इस ग्रुप के एक एक मेंबर के ऊपर मांगती हूँ खुदा एक एक को यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ, तेरी कवरिंग में दे देती हूँ खुदा, तू अपने बाजुओं में छुपा के रख एक एक को खुदा और खुदा यीशु कभी भी ये रूहें जो खुदा तूने मुझे दी हैं, जो इस ग्रुप में आती हैं, उनको कभी भी शैतान वो इस ग्रुप में चाहे छोड़ दें इसको, लेकिन खुदा शैतान उनको छीनने ना पाए खुदा। मैं एक एक के लिए तेरा खास मसा यीशु के नाम मांगती हूँ खुदा शैतान किसी भी तरीके से उनको खुदा छीनने ना पाए, वो तुझ में वफादारी से, ईमानदारी से नेम जिंदगियां गुजारे और शैतान पे फतह हासिल करते जाए। यीशु के नाम से मैं एक एक इन के द लिए नेम शुरू से लेके आज तक जितने भी इस ग्रुप में आए वो छोड़ के चले गए, लेकिन मैं उनके लिए खास तेरी मसा मांगती हूँ, खास तरह जोर मांगती हूँ कि खुदा शैतान किसी भी तरीके से खुदा उनको तुझसे दूर ना करने पाए खुदा यीशु के नाम से खुदा। जो रूहें आमीन तूने दी हैं मुझे Yes, खुदा उन सबको यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ खुदा, तेरे पवित्र हाथों में दे देती हूँ, तेरे जोर वर तेरे
कुदरत वाले तेरे ताकत वाले दाहिने हाथ में तेरे सुपुर्द कर देती हूँ। एक एक की हिफाजत निगहबानी करना खुदा, यीशु के नाम से खुदा इस दुआ को हम बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से सब मिलके मांगते हैं। और हमारा ईमान है कि तेरा तख्त यहाँ पे लगा हुआ है और तूने हमारे दुआओं के एक एक लफ्ज को, एक एक नुक्ते को सुना है और खुदा तूने Yes, Lord. जवाब दिया है। खुदा हम Yes. तेरा शुक्र करते हैं कि तू ये सब कुछ हमारी जिंदगियों में पूरा करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। Amen. Amen. हम Amen. ईमान से इस पानी को पिए और इस रोटी को लें। ताकि जोर और ताकत हासिल करें, कुदरत हासिल करें खुदावंद के, क्योंकि देखें ये सब कुछ ईमान से ही होगा। हमें कुछ कई दफा नहीं भी नजर आ रहा तो हमारी जिंदगियों में खुदावंद काम कर रहा है। खुदावंद जो है कई दफा इन हालात को ही यूज करता है, या कह लें बीमारी को, हमारे ईमान को बढ़ाने के लिए। तो इसलिए आप ईमान से इस पानी को या इस ऑयल को लगाया करें, क्योंकि ईमान के वसीला से ही हम क्या है बचाए जाते हैं। या खुदाम यीशु मसीह पे, खुदाम यीशु मसीह का लहू हमें नजर नहीं आ रहा, खुदाम यीशु मसीह हमें नजर नहीं आ रहे। तो ये हमारा ईमान ही है ना कि उसने जान दी हमारी खातिर, उसने सलीबी मौत के वसीला से हमें गुनाहों से रिहाई मिल गई है ना। तो Praise the इसलिए ये Lord. Yes, Lord. ईमान से आप इस पानी को लिया करें ताकि हम शिफा पाएं, है ना, और Yes, Lord. जोर और ताकत हासिल करें। प्रेज गॉड, Hallelujah. हालेलुया, प्रेज गॉड। हम जो मुकाशफा है उसका 12 बाब और उसकी 6 आयत तक हमने थोड़ी सी बात की, और मेरा ईमान है कि काफी बातें जो थी आपको समझ लगी हैं और काफी बातों पे आपने अमल भी किया होगा जो कुछ हम सीख रहे हैं, क्योंकि हम जो भी मैं कहूँगी कि जिस भी किताब को हमने पढ़ा है, पहली जो तोरा की किताबें हैं 5 हमने पढ़ी, और अब जो मुकाशवा की किताब हम पढ़ रहे हैं, तो हम रूहानी तौर पे अपने आप को तैयार करें। आप सबको ये अब एक बात जो है मैं कहूँगी जिनको नहीं भी पता था, बहुत से को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं भी पता था तो अब तो पक्का पता चल गया होगा कि हम रूहानी हैं, हम जिस्मानी नहीं हैं। तो इसलिए हमारी तैयारी भी जो है वो रूहानी तौर पे हो रही है। उस बात तो इसलिए जो भी हमें अजर मिलने हैं वो रूहानी तौर पे है जमीन पे भी, और जो आसमान पे हमें मिलेंगी, जैसे ताज का हमने सीखा, जो कपड़े हैं हम पहन रहे हैं, है ना, तो ये सारा कुछ रूहानी तौर पे हो रहा है। दुल्हन जो है या नया यरूशलेम जो है वो भी रूहानी है वो भी आगे चल के हम देखेंगे कि वो कोई इमारत नहीं बनी हुई, है ना, वो भी रूहानी तौर पे है। जंग जो है वो भी रूहानी है तो इसलिए हम इस जैसे कह लें कि मुझे थोड़ा-थोड़ा जो समझ आया, ये जैसे खुदा मुझे गाइड करता है, मैं कोशिश करती हूँ कि हम वो ही सीखें कि हम रूहानी तौर पे तैयार हो रहे हैं। तो इसमें भी जो औरत का मतलब हमने सीखा, जो अज़हा कह लें या उसके जो कपड़े हैं, जो उसका ताज जो है, जो कुछ भी था, रूहानी तौर पे हमने सीखा, है ना? तो ये असल में सारा मैं कहूँगी कि निचोड़ जो है या हमारी जड़ें जो है वो किससे जुड़ी हुई हैं? खुदावंद यीशु मसीह से, यानी सच्चाई पे अगर हम कायम हैं, यानी कि सच्चाई कौन है? खुदावंद यीशु मसीह, और उसके मुंह से जो बातें निकली हैं, जो कलाम है, अगर हम उसको करते जाएंगे
تو ہم تیار ہو رہے ہیں، اور کوئی راستہ، کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ ہم تیار ہوں۔ تو یہ سوائے مطلب کہہ لیں کہ خداوند کا کلام جو ہے، بائبل کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے، جب تک ہم اس کے حکموں پہ عمل نہیں کریں گے تب تک ہم تیار نہیں ہو سکتے۔ جتنے بھی خداوند نے کہہ لیں خداوند یسوع مسیح نے حکم کہہ لیں دیے ہیں یا باتیں ہمیں یا قانون جو ہے، جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تب تک ہم تیار نہیں ہو سکتے، ہے نا۔ تو اس لیے جو بھی خداوند کا کلام یا خداوند کے جو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں یا ان کے ذریعے جو بھی آپ کلام میں سے پڑھیں، کوشش کریں ہم سبھی کہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کوشش ہم کریں گے، زور جو ہے یا قدرت جو ہے وہ خداوند پاک روح ہمیں تیار کرے گا اپنے زور سے، اپنی طاقت سے، لیکن ہم اپنے بدنوں کو پیش کریں، ہے نا۔ تبھی اس مرد بچے کی طرح، جیسا ہم نے سیکھا کہ مرد کا کیا مطلب ہے کہ وہ زور آور ہے نا۔ مرد جو ہوتا ہے تو اس کی طرح تیار ہونا ہے، یعنی ہمارے اندر وہ مردانگی، وہ شیر کی طرح ہمارے اندر وہ کیا کہتے ہیں دلیری جو ہے وہ ہونی چاہیے، ہے نا۔ تو اس لیے یہ ایک میں کہوں گی کہ پکی جو ہے گانڈ مار کے رکھ لو گل کہ ہم روحانی طور پہ تیار ہو رہے ہیں، ہے نا۔ تو یہ جو تلوار ہے یہ روحانی تلوار ہے، اسی لیے جیسے کہہ لیں جو شیطان جو تلوار چلاتا ہے یا ہمارے اوپر تیر چلاتا ہے وہ بھی سب روحانی ہیں۔ تو وہ تلوار کیا ہے، یا وہ جو مکاری سے ہمارے زندگیوں میں بدنوں میں لے کے آتا ہے، گھروں میں، کہ وہ یہ بیماری، وہ یہ پریشانی لے کے آتا ہے۔ تو اس جنگ کو ہم بھی جب تک تلوار نہیں چلائیں گے جیت نہیں سکتے، تب تک ہم فتح نہیں پا سکتے۔ اس دن زیادہ ہم نے اس پہ بات نہیں کی تھی کہ خدا یسوع مسیح نے دیکھے ایک ایک بات شیطان کہاں سے کر رہا تھا، اس بائبل میں سے اس کے ساتھ کر رہا تھا، اور خدا یسوع مسیح نے بھی جواب کہاں سے دیتے تھے، اس بائبل میں سے ہی، اس کلام میں سے جواب دیتے ہیں کہ لکھا ہے۔ شیطان کیا کہتا تھا، وہ بھی تلوار چلاتا ہے، اور وہ بھی کیا کہتا تھا، یوں تیرے بارے میں لکھا ہے نا، کہ وہ تجھے اپنے پروں میں چھپا لیں گے، ہے نا۔ تو خدا یسوع مسیح نے بھی تلوار کہاں سے چلائی تھی، کلام میں سے چلائی تھی، کہ کلام میں یہ لکھا ہے۔ تو اس لیے آپ کو یہ تلوار جو ہے وہ چلانی جو ہے وہ آنی چاہیے۔ جب تک بھی ہم یہ نہیں سیکھیں گے، کلام کو پڑھیں گے نہیں، تب تک ہم تیار نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جب بھی کیا کہتے ہیں زیادہ جو ہے بائبل کو پڑھیں، کلام کو پڑھیں، تاکہ یہ روحانی تلوار جو ہے چلانی ہے۔ تلوار کس طرح ہم چلاتے ہیں، جیسے بیماری آئی ہے تو آپ منہ سے بولیں کہ ہمارے یسوع نے میرے لیے لہو بہایا ہے، میں اس کے لہو کے وسیلہ سے مجھے شفا جو ہے وہ مل گئی ہے۔ تیرا جو بھی بیماری ہو، جیسے کہلے بخار ہے فرض کریں، تو اس کو کہیں کہ تیرا میرے پہ کوئی اختیار نہیں ہے، تو میرے بدن کو چھوڑ دے یسوع کے نام سے، میں اس کے خون میں اپنے آپ کو دھوتی ہوں یا پاک صاف کرتی ہوں، اس کے خون کو لگاتی ہوں۔ تو یہ تلوار چلانا ہے۔ یہ تلوار ہمیں چلانی بہت سے کہ میں کہوں گی مسیحیوں کو آتے نہیں ہے، یہ اصل میں ہوتی ہے تلوار چلانے۔ اور اس میں جو خداوند بولتا ہے، آپ جس کہہ لیں ہلکی سی آواز کہہ لیں آتی ہے، کئی دفعہ کانوں میں آتی ہے، کئی دفعہ ہمارے اندر سے پاک روح کی آواز آتی ہے، وہ دھیمی سی، کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے شفا دوں گا۔ تو یہ کیا ہوا، یہ ہم نے پھر اس کلام کے اوپر جو ہمیں تھوڑی سی ہلکی سی آواز آئی، ہم کھڑے ہو گئے، ہم قائم رہے۔ یہ ہونا ہے سٹینڈ لینا، کھڑے ہونا۔ تو ہمارے اندر ایک پیس آ جاتا ہے کہ خداوند نے مجھے جواب دیا ہے، اور ہم پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تلوار آپ سب کو چلانی آنی چاہیے، کیونکہ یہ اگر نہیں آپ چلاتے تو اس وقت جب دولن جو کہ آسمان پہ اٹھائی جائے گی، اور جب وہ آئے گی
تو شیطان کے ساتھ اس کے جو لوگ ہیں یا اس کی جو بدرو ہیں کہہ لیں ਉਹਦੇ ਨਾਲ لڑائی کرنی پڑنی ہے۔ تو وہ کہاں وہ کس سے کرنی ہے؟ اسی طرح زبان سے کہہ لیں یا منہ سے کہہ لیں، جس طرح خدا یسوع مسیح کا ہم نے پہلے چیپٹر میں پڑھا کہ وہ کیا ہے، منہ کی تلوار سے، یعنی جو کچھ ہم منہ سے بولتے ہیں وہ کرنا پڑے گا، وہ تلوار جو ہے وہ چلانی پڑے گی۔ تو وہ آج ہی اگر آپ تلوار چلانی آتی ہے، یہ نہ ہو کہیں انہوں پھڑنی نہیں آتی تو اس وقت کیسے چلائیں گے، ہے نا؟ تو یہ ابھی آپ کو چلانی آتی ہے تو اس وقت بھی جیسے کہہ لیں جب ہم گھوڑوں پہ آئیں گے خدا یسوع مسیح کے ساتھ تو وہ تلوار چلانی ہمیں آنی چاہیے۔ تو یہ ایک کہہ لیں کہ ایک سپاہی کا یا ایک جنگجو کا، یا ہمیں جو کہا گیا کہ ہم پہلوان ہیں تو ہمیں یہ تیر چلانے جو ہے واپس آنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو میرا یہی ایک بوجھ ہے کہ ہم ایک جنگجو کی طرح، ایک سپاہی کی طرح، ایک پہلوان کی طرح ہمیں جو وہ وار کرتا ہے اس وار کا ہوشیاری سے جواب دینا آنا چاہیے، ہے نا؟ یہ نہیں کہ کبوتر کی طرح ہم آنکھیں بند کر لیں یا تو ہم سمجھے کہ جی یہ آپ ہی چلا جائے گا، یہ سدا خون ہے اسی ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ چھپے ہیں، ہے نا؟ نہیں، ہمیں منہ سے بولنا پڑے گا، ان بدی کی قوتوں کو اپنے گھروں سے، اپنے اندر سے نکالنا پڑے گا، ڈانٹنا پڑے گا۔ بڑیاں ٹیٹ ہوندی ہیں، کئی تو آرام سے نکل جاتی ہیں لیکن کئی کو تھوڑی ڈانٹ ڈونٹ کیا کہتے ہیں لگانی پڑتی ہے۔ تو اس لیے اپنے منہ سے بولا کریں۔ بیماری آ گئی ہے یا پریشانی آ گئی ہے تو چلاتے رہیں، یہ نہیں کئی دفعہ ایک دفعہ ہی بولنے سے پہلے تلوار چلائی ہے، کئی دفعہ زیادہ وار کرنے پڑتے ہیں۔ میرے کلام میں بھی ایک دفعہ مجھے یاد نہیں ہے اسٹوری، اگر پیچھے یاد کریں تو کتنے وار کیے پھر وہ مرا۔ میرا اسرائیلی جب جنگ کر رہے تھے تو کئی ضروری نہیں ہے کہ کئی دفعہ ایک ہی دفعہ ہم نے وہ اس بدرو کو ڈانٹا ہے، نکالا ہے تو وہ نکل گئی ہے۔ کئی دفعہ ہمیں زیادہ ٹائم لگتا ہے کہ ہم تب تک ہم اس کو نکالتے رہیں یا اس کو ڈانٹتے رہیں، یعنی یہ منہ کی تلوار جو ہے وہ چلاتے رہیں جب تک کہ وہ نکل نہ جائے، ہے نا؟ تو اس لیے یہ تیاری ہے اصل میں ہماری کہ ہم جو ہے وہ خدا ان کے کلام کے اوپر عمل کر کے وہ نیک کام جو ہے یا وہ خدا نے جو کام ہمارے سپرد کیے ہیں، یہ میرا خیال ہم نے گرنتھیوں کے خط میں پڑھا تھا، ہے نا؟ کہ ہمیں اس نے کس لیے زمین پہ بھیجا، تاکہ اس کی کامل مرضی کو پورا کریں اور وہ نیک کام کریں جو اس نے ہمیں ہمارے ذمے لگائے ہیں۔ تو اس لیے ہم زمین پہ آئے ہیں۔ زمین پہ یہ کوئی کیا کہتے ہیں رنگ رلیاں بلانے نہیں آئے، جیسے کہہ لیں کیا کہتے ہیں ناچ رنگ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم خوشی بھی کریں تو اپنے خداوند میں کریں، ہے نا؟ جب خداوند میں ہوتے ہیں تو تب خوشی کریں، دوسرے جو کام ہیں ان کے لیے اپنا ٹائم ہم ویسٹ نہ کرتے رہیں۔ یہ دولن جو ہے یہ خاص اس کے لیے باتیں ہو رہی ہیں، میں سب جو ہوتے ہیں کہلے مسیح میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں، ان سب کے لیے یہ نہیں ہے، لیکن ہم جو دولن کے طور پہ تیار ہو رہے ہیں یہ خاص ان کے لیے ہے۔ آپ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ تیار ہو جائیں گے، اب نہیں کرنا چاہتے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جس طرح کہہ لیں کہ جو نہیں تیار ہوگا تو وہ پھر اس کو اس تکلیف میں سے یا اس میں سے مصیبت میں سے گزرنا پڑے گا۔ اب یہ جو مصیبتوں میں سے گزر رہے ہیں یہ فرق ہے نا؟ لیکن وہ جو مصیبتیں ہوں گی وہ فرق ہوں گی۔ تو یعنی یہ 6 آیت تک ہم نے پڑھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے روحانی طور پہ ہو رہا ہے، اور جو وہ مرد بچہ ہے وہ تخت تک پہنچا دیا گیا، یعنی اس کے آن ہز تھرون، یعنی انگلش میں اس طرح لکھا ہے کہ اس کے تخت کے اوپر، یہ نہیں کہ پاس پہنچا دیا گیا، ہے نا؟ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے تخت کے اوپر تک پہنچا دیا گیا۔ تو اس لیے یہ ہم نے سیکھا ہے۔ اور عورت کا کل میرا اس دن ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ جو بیابان کو بھاگ گئی ہے، وہ ہم نے سیکھا تھا کہ یہ مصیبتوں کو پیش کرتا ہے، پریشانیوں کو، آزمائشوں کو یہ پیش کرتا ہے کہ اس وقت ان کو
जो जमीन पे रह जाएंगे उनमें से गुजरना पड़ेगा, है ना। और खुदावन जो है जिस तरह के जब दिल की शरीयत थी कह लें कि तो जो जैसे कह लें कि उस वक्त खुदावंद का फजल या पाकरू उनके साथ काम करता था, उस तरह से खुदावंद उनको फजल देगा या उनको उनके साथ काम करेगा। लेकिन जैसे अब जो हम कह लें खुदावंद के पाकरू के जोर से, उसकी ताकत से या उसके हम गलबा पाते हैं, है ना। ये वाला खुदावंद का पाकरू जो है वो उस तरह से उन मसीहियों के साथ काम नहीं करेगा, है ना। उस तरह से उनका फजल उनके साथ फजल जो है वो काम नहीं करेगा, है ना। लेकिन वो जो अ, जो उस वक्त मुसीबतें होंगी खुदावन जो है उनमें से निकलने के लिए उनको, यानी ये जो लिखा हुआ है कि उनकी परवरिश होगी, तो खुदावंद उसमें से गलबा पाने के लिए उनको फजल जो है वो देगा कि वो कम से कम इतना वो इनकार जो है वो कर सकें कि, और ये भी अभी आगे हम सीखते हैं कि वो किस तरह इस पे क्या लें कि कायम रह सकेंगे कि वो इनकार ना करेंगे यीशु का, है ना। तो 1260 दिन तक उनकी लिखा है कि परवरिश जो है वो होगी, है ना। तो आज हम थोड़ा सा सीखेंगे जो 7वीं आयत है कि फिर आसमान पर लड़ाई हुई। हमारे साथ रीडिंग में सिस्टर सबा और सिस्टर माया रीडिंग में। सब आप तैयार हैं? नैनी बेटी 12 बात 7 है ना। हाँ जी, 7 से आप मुकाशवा 12 बात 7 आयत से 8 आयत तक लिखा हुआ है ना। चलिए ठीक है, आगे पढ़े, देखेंगे आगे पढ़ते हैं। फिर पढ़ो। आसमान पर लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन गालिब न आए। इसके बाद आसमान पर उनके लिए जंग न रही, और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है, वो सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी कि अब हमारे खुदावा की निजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाया करता है, गिरा दिया गया। और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाइस उस पर गालिब आए, और उन्होंने अपनी जान को अजीज न समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। बस ए आसमानों और उसके रहने वालों, खुशी मनाओ। ए खुशकी और तरी तुम पर अफसोस, क्योंकि अबलीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है। और जब अजदहा ने देखा कि मैं जमीन पर गिरा दिया गया हूँ, तो उसने औरत को सताया जो बेटा जनी थी, और उसने औरत को बड़े अकाब के 2 पर दिए गए, ताकि शाम के सामने से उड़कर बियाबान में अपनी उस जगह पहुंच जाए जहां एक जमाना और जमानों और आधे जमाना तक उसकी परवरिश की जाएगी। और साम ने उस औरत के पीछे अपने मुंह से नदी की तरह पानी बहाया, ताकि उसको इस नदी से बहा दे। मगर जमीन ने उस औरत की मदद की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को पी लिया जो अजहा ने अपने मुंह से बहाई थी। और अजहा को औरत पर गुस्सा आया, और उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यसु की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को गया। आमीन। आमीन आमीन जी। God bless you. जी सोनिया आप पढ़ना। Okay. Praise the Lord. ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਛਿੜ ਪਿਆ।
ਸਵਰਗਦੂਤ ਮਿਕਾਇਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਸਵਰਗਦੂਤ ਅਜਗਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ। ਅਜਗਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਲੜੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਜਗਰ ਅਰਥਾਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਪ, ਜੋ ਇਬਲੀਸ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੇਠ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਦ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਸੁਣੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ, ਬਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਮਨੇ ਦੇ ਲਹੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਹੇ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਓ, ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ, ਪਰ ਹੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ओके जी। इसमें हमने जो आज की आयत पढ़ी है, 7वीं आयत में ये हमें पता चल रहा है कि जब जो मर्द बच्चा था, जो दुल्हन थी, वो आसमान पे उठा ली गई, है ना, और जो औरत थी वो बियाबान को भाग गई। तो हमने देखा कि बियाबान जो है वो जैसे पहले मुसीबतों को पेश करता है, आजमाइशों को पेश करता है। तो उस वक्त आसमान पे जो थी वो जंग हुई, किसकी? माइकल फरिश्ते की, और जो अस्ता है वही पुराना सांप जो है उसकी जो थी खुदावन के फरिश्तों के साथ जंग जो है, वो लड़ाई जो है वो हुई, और उसको भी जमीन पे गिरा दिया गया। यानी वो जो शैतान के फरिश्ते हैं और शैतान को जमीन पे गिरा दिया गया। और क्या कहते हैं, आगे चल के हम थोड़ा देखेंगे इसको, थोड़ा क्या लेंगे 13 चैप्टर में कि डिटेल के साथ, कि जब ये जमीन पे गिरा दिया गया तो इसने क्या जो है वो काम जो है कह लें करना शुरू किए। और जो एंटी क्राइस्ट है, जो मुखालफे मसीह है ना, कि उसमें हम पढ़ते हैं कि इसने सारा जो क्या था, अपनी कुदरत जो थी वो उसको दे दी थी, है ना। तो इसलिए जब ये जमीन पे आएगा, जब ये इसको खुदाम के फरिश्ते जो है, माइकल फरिश्ते और उसकी जो फौजें हैं, उसने इसको जमीन पे गिरा दिया। जब दुल्हन जो है आसमान पे उठा ली गई, यानी ये पहले जो है कह लें हुआ। ये अब आप बड़ी कह लें कि तरतीब से कह लें कि ये 12वां चैप्टर, इसीलिए मैंने कहा था कि ये हम मसीहियों के लिए है, कि जो जो कुछ यहाँ पे अब हो रहा है, ये असल में कह लें कि एक तरतीब के साथ हम देखेंगे कि जो जो भी वाकयात हो रहे हैं, कि पहले जो है मतलब एक दुल्हन ओ क्या कहते हैं, उस औरत को देखा, उसके बारे में खुदावन ने यूहन्ना आरफ को दिखाया, और उस अस्तहा का बारे में दिखाया, है ना, यानी निशान जो उसने आसमान पे देखे थे। और फिर खुदावन ने जो इस औरत के साथ होगा, वो खुदावन ने इसको दिखाना शुरू किया कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, है ना। तो इसने देखा कि जो वही अस्तहा है वो जमीन पे गिरा दिया गया, लेकिन औरत जो है वो बियाबान को भाग गई। ये यूहन्ना आरफ जो है वो एक रोया जो है वो ये नहीं देख रहा है ना। तो इसलिए पहले क्या हुआ कि वो बच्चा जो था, मर्द बच्चा, यानी रैप्चर जो है वो पहले हो गया, और उसके बाद औरत का उस वक्त जमीन पे क्या हाल हुआ, वो हम आगे चल के ये जो 13 चैप्टर है उसमें थोड़ा ज्यादा इस पे बात करेंगे, है ना। तो और फिर जो है आसमान पे लड़ाई हुई, और उसको यानी मेरा ख्याल आगे जो 13 चैप्टर है उसमें ये भी हमें पता चलता है कि उसने अपनी कुदरत जो थी मुखालफे मसीह को दे दी। जब जो
दुल्हन है जब आसमान पे उठा ली जाएगी, तो हमने उसमें पढ़ा था मेरा ख्याल थस्सलुनीकियों के खत में, है ना, कि जब तक उसको एक रोकने वाला है तब तक वो सामने नहीं आएगा। तो जब दुल्हन उठा ली जाएगी तो मुखालफे मसीह पहले सामने आएगा, और साथ ही हम देखते हैं कि लड़ाई हुई आसमान पे, और जो सारी कुदरत है जो शैतान की, वो ये मुखालफे मसीह को दे देगा। यही कह लें अस्तहा जो है पुराना साम से है, क्योंकि उसको जैसे कह लें कि उसको ये एक बदन चाहिए अपनी सारी जो जो मंसूबे हैं, या जो भी उसने अजियत देनी है, या जो भी उसने करना है, यानी शैतान ने, ये इस पुराने अस्तहा ने, तो ये अपनी सारी जो एक कह लें कुदरत है, अपना सारा शैतानियत कह लें, उसको जो है दे देगा। और जो एंटी क्राइस्ट जो है वो जमीन पे कह लें कि वो काम जो है कह लें लोगों को, मसीहियों को कह लें खास तौर पे अजियत जो देना है वो शुरू कर देगा। तो हमने देखा कि लड़ाई हुई, और जो अस्तहा है इस चैप्टर में कह लें कि हमने ये देखा कि उसको जमीन पे गिरा दिया गया, है ना। और जो कह लें, और ये वही पुराना सांप है ना। और ये कौन है? ये गुमराह करने वाला है, जो हमने जैसे कि देखा कि वो औरत के सामने खड़ा हुआ है, और वो किसको गुमराह कर रहा है? यानी कलीसिया को, उस औरत को, जो हम बिलीवर हैं, जो ईमानदार हैं, ये उनको क्या करता है? उसमें कलीसिया में घुस के, यानी चर्च में घुस के उनको गुमराह करता है। जो हमने सीखा, ये आगे चल के और थोड़ी डिटेल से करेंगे कि गलत तालीमों की वजह से जो हमने, और नकेलियों की तालीम, या हमने देखा बाल की तालीम, तो ये किस तरह से उनको गुमराह कर रहा है, या ऐसे ऐसे मसीह जो है ऐसे ऐसे लोगों को ये इस्तेमाल कर रहा है, और वो कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर, या उस औरत के अंदर ये काम कर रहा है। और ये कौन है? यही गुमराह करने वाला जो हमने नामी आयत में पढ़ रहे हैं, है ना, कि ये वही पुराना सांप इब्लीस, जो शैतान कहलाता है, और जो सारे जहान को गुमराह करता है, जमीन पर गिरा दिया गया, और उसके फरिश्ते भी। तो असल में गुमराह हमें कौन करता है, या पूरी दुनिया को? यही पुराना सांप जो है, अस्तहा जो है। तो इसलिए इसको इस वक्त जमीन पे गिरा दिया गया, जब यानी खुदा पाक रूह और दुल्हन जो है आसमान पे उठा ले गए, तख्त तक पहुंच गए, तब ये हुआ, है ना। और 10वीं आयत में हम देखते हैं कि जो भाइयों पे इल्जाम लगाने वाला है, यही शैतान जो है, यानी यही गुमराह करता है, यही इल्जाम लगाने वाला है। यानी हम जो मसीही कह लें, खुदावंद के साथ जो चलने वाले हैं, उनको ये गुमराह करने वाला है। और हम पे इल्जाम कौन लगाता है? यही लगाता है। हमारी शिकायतें कौन लेके जाता है? यही खुदा के सामने शिकायतें लेके जाता है। तो हम एक हवाला पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों पहला बाब और उसकी 10 आयत। ये जो इल्जाम लगाने वाला है, यही शैतान है जी। सबा और सोनिया, पहला कुरिन्थियों 10 पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब उसकी 10 आयत। जी मेरे हमारे साथ हैं। पहला कुरिन्थियों पहला पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब और उसकी 10 आयत। यानी ये कौन है? यानी ये जो गुमराह हमें करता है। पहला बाब और उसकी 10 आयत। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ। आमीन। आमीन। हाँ जी, सब आप पढ़ेंगे? पहला कुरिन्थियों पहला बाब 10 आयत। हाँ हाँ। अब ए भाइयों, यीशु मसीह जो हमारा खुदावंद है, उसके नाम के वसीला से मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि सब एक ही बात कहो और तुम में तफरके न हो, बल्कि बाहम यकदिल
और यकराई होकर कामिल बने रहो। आमीन। आमीन। तो ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाने वाला है, यही गुमराह करने वाला है। तो जब इसको ये अभी जैसे कह लें ये जंग हुई है और उसको जमीन पे गिरा दिया गया है, तो ये इसका कोई यानी ये इसकी अदालत जो हुई है, ये इसकी कोई कह लें इसकी फाइनल जो है इसकी अदालत है वो नहीं हुई। आगे चल के हम इसके देखेंगे कि इसका हाल क्या होता है ना? यानी शैतान का या ये वही पुराना जो अस्तहा है। लेकिन अभी जो फिलहाल इसकी अदालत हुई है या जो तो इसको ज़मीन पे गिरा दिया गया है। और ये ही क्या करता है, यानी इसको सख्त नापसंद है कि हम जो मिल के यानी जैसे कलीसिया कह लें या चर्चेस जो हैं मिल के काम करें या एक फैमिली कह लें कि हम यूनाइट रहें। हम जैसे कह लें हमारे अंदर लड़ाई झगड़े ना हो, हमारे अंदर तफरके ना हो, हम यक दिल हों और ताकि हम क्या बने कामिल बने। तो ये जब भी हमारे कह लें कलीसिया में, चर्चेस में या हमारे घरों में आता है तो एक दूसरे में की कहते हैं फुट पा देना है। जब भी आता है तो ये इसके मंसूबे होते हैं कि हमारी एक दूसरे के साथ ये कह लें जो एक भाईचारा होता है या वो मेल मिलाप होता है उसको ये खत्म कर देता है। हम इकट्ठे बैठ के जैसे कह लें कोई एक फैमिली है, हम फ़र्क-फ़र्क जगहों पे जा रहे हैं इबादत के लिए या चर्चेस में, हमारा फ़ेथ आपस में मैच ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसने हमारे अंदर ये तफ़रके जो हैं वो डाले हुए हैं। या चर्चेस आपको पता है कि हर जगह एक नया जो चर्च है। तो ये यगानियत जो है, ये इसको पसंद नहीं है। हम जो इकट्ठे रहते हैं, एकजुट हो जाते हैं ये इसको पसंद नहीं है शैतान को। तो ये क्या करता है हमें कलीसिया में आके, चर्च में आके या घरों में आके हमारे जो हमारे अंदर कह लें कि नफ़रत पैदा करता है। हम एक-दूसरे के ऊपर ही जैसे कह लें तनकीद करना, कीड़े निकालना, इल्ज़ाम लगाना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो ये इसको बड़ा पसंदीदा कह लें इसका फ़ेवरेट जो है एक काम जो है या ये तीर जो है, ये जो मिसाइल हमारे ऊपर छोड़ता है, ये इसका पसंदीदा है। और ये घरों में कह लें लड़ाई-झगड़ा जो या हमारी सोच आपस में नहीं मिलती, मियाँ-बीवी की कह लें, बच्चों की नहीं मिलती या बहन-भाई हैं, तो ये आके तफ़रके जो है डाल देता है। हम एक-दूसरे को जैसे कह लें कि पंजाबी में कहते हैं कट्टन-फाड़न नू हर वक़्त तैयार रहते हैं। हम हमेशा एक-दूसरे की ऊपर तनकीद करते रहते हैं, इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। तो ये इसको बहुत पसंद है। तो यही वो आके कह लें चर्चेस को आके या घरों को आके कह लें उजाड़ देता है या कह लें। तो इसलिए खुदावंद का बंदा जो है हमें बता रहा है कि जिसमें ये नहीं है यानी ये गुमराह करने वाला ये हमारे आके कह लें चर्चेस में या घरों में आके ये वाला काम जो है करता है। लेकिन खुदावंद का बंदा हमें क्या कहता है कि हम एकजुट रहें, यगानियत हो हमारे अंदर, है ना? तो एक और हवाला हम पढ़ते हैं जिसमें पौलुस रसूल हमें कहता है गलतियों 5 बाब उसकी 5 15 और 16 कि हम क्या कहें मिल-जुल के रहें। अ, गलतियों 5 बाब उसकी 15 और 16 आयत। गलातियां हाँ जी, हाँ जी गलातियां और केड़ा 5 बाब ਉਹਦੀ 15 ਤੇ 16 आयत। 15 ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਆਮੀਨ। आमीन। जी सबा। लेकिन अगर तुम एक दूसरे को काटते और फाड़े खाते हो तो खबरदार रहना कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। आमीन। आमीन। हाँ जी। तो ये हमारे मतलब घरों में या कलीसिया में आके ये करता है, हम एक-दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, नफ़रत करते हैं, तफ़रके पड़े रहते हैं, हसद करते हैं।
तनकीद करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं। तो पौलुस रसूल कह रहा है कि कहीं खबरदार रहो कि एक दूसरे का कहीं सत्यानाश ना कर दो। इसी में कई दफ़ा हम पड़े रहते हैं, तो हम ये जो खुदावंद हमसे चाहता है कि हम एक रूह या रूह के मुआफ़िक चलें और जिस्म के कामों को पूरा ना करें। तो कहीं हम अपने यानी जैसे ईमान से या अपने खुदा का इनकार ही ना कर दें। तो इसलिए ये नहीं चाहता कि हम मिल-जुल के रहें, हमारे अंदर प्यार, मोहब्बत हो, सुलह हो और ये क्या कहते हैं जो जिगानगत जो है वो हमारे अंदर हो और हम एक रूम में बंधे रहें। जैसे कि हम कहें कि इस ग्रुप में जब हम आते हैं तो हम एक-दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहें, है ना? कि ये कर रहा है या घरों में ऐसे होता है। हम एक रूम में नहीं बनते, तो उस तरह का मसा भी हमारी ज़िंदगियों में नहीं आता, हमारे घरों में नहीं आता। तो ये सारे इसके काम हैं। यानी कह लें यही अस्तहे के या शैतान के या इस साँप के जो हैं, ये हमारी ज़िंदगियों में आके इस तरह की जो है बातें या इस तरह के लड़ाई-झगड़े जो हैं, वो शुरू कर देता है। इसी वजह से हम जो हैं सब जिस्मानी जब काम कर रहे हैं, तो उस मर्द बच्चे की तरह हम तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि हम रूह के मुआफ़िक नहीं चल रहे। जो रूह की हिदायत से चल रहे हैं, रूह के मुआफ़िक चल रहे हैं, वो है मर्द बच्चा। लेकिन जो इस तरह के कामों में हम पड़ जाते हैं क्योंकि ये क्या करता है शैतान मक्कारी से हमारे घरों में इस तरह के काम करता है कि देखो वाक़ई वो तो गलत काम कर ही रहा है, मैं कोई ऐसे तो नहीं गुस्सा कर रहा, है ना? जैसे मैं घर में कहूँ तो जवेद को के बच्चे ने मतलब ऐसे ना डाँटो, गुस्सा ना करो, तो वो कहता है, "वो देखो उसने गलत काम किया तो मैं ना ना डाँटूँ।" तो ये जो है ये हमारे घरों में इस तरह घुसता है मतलब बच्चों से या मियाँ-बीवी के हमारे आपस में कुछ हो जाता है, तो हमने जिस्म का काम किया। यानी जब हम लड़ाई-झगड़ा करते हैं तो ये क्या है? ये जिस्म की ख़्वाहिश को पूरा कर रहे हैं और ये मक्कारी से हमसे करवा रहा है, हमारे बदन को ये यूज़ कर रहा है या किसी से हसद करते हैं, तो ये मक्कारी से हमारे कह लें ऐसी सोचें लेके आता है, ज़हन को सोचों को ये यूज़ कर रहा है कि हम उस बंदे से कह लें या अपने शौहर से या अपनी बीवी से या अपने बहन-भाइयों से या किसी और से बाहर जैसे कह लें किसी पास्टर से या किसी से भी हसद करना शुरू हो जाते हैं। तो वो सोचें कौन लेके आ रहा है? यही शैतान जो है हमारे ज़हन में लेके आता है ना? और नफ़रत है अगर किसी से हम करते हैं, गुस्सा है हमारे अंदर, है ना? तो ये क्या है? ये सारे जिस्म के काम हैं और जब हम ये करते हैं तो ये गलातियों के ख़त में हमें पता चलता है कि जो जिस्म के काम करता है वो अ, कह लें कि उस खुदावंद की उस बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आगे पूरी लिस्ट है अगर इसको इसी चैप्टर को हम पढ़ें कि है ना, कि अगर हम नापाकी में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, बुत परस्ती में हैं, जादूगरी में हैं, अदावतें हैं, झगड़ा है, हसद है, जुदाइयाँ हैं, नशा है हमारे अंदर, है ना? बुग़्ज़ भरा हुआ है, नाच रंग है ना? तो हम ये जिस्म के काम कर रहे हैं, तो हम रूह के काम नहीं कर रहे। तो इसलिए हम जब कह लेंगे जो आयत हम अभी पढ़ते हैं कि ये वो लोग जो हैं कह लें इसकी बातों में फँसते हैं या इसके जाल में फँस जाते हैं, जो इसको अपना बदन इस्तेमाल करने देते हैं। लेकिन हमने अपने बदन क्या करने हैं इसीलिए हम मैं बार-बार आपको बताएँ, दुआ में यही कहती हैं अपने बर्तन जो है, जो हमें रोमियो के खत में खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश कर अपने बदनों को इसको ना इस्तेमाल करते कि ये हमारे अंदर गुस्से की ऐसी सोचें लेके आए, नफ़रत लेके आए इल्ज़ाम हम एक-दूसरे पे लगाते रहते हैं, गलती हो गई है या कुछ गलत काम हो गया, तो हम उसका इल्ज़ाम दूसरे पे ही लगाते रहते हैं। हम अपनी गलती नहीं मानते, हम कहते हैं नहीं इसकी वज़ह से हुआ है, इसकी वज़ह से मैं गिर गई हूँ, इसकी वज़ह से ये हुआ है ना? मैं तो खुदा में बड़ा बढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ, लेकिन ये मेरी बीवी नहीं मेरे मुझे आगे बढ़ने देती, ये मेरे बच्चे मुझे बहुत तंग करते हैं, है ना? तो हम दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। हालाँकि हम अगर रूह के मुआफ़िक चलें या रूह की हिदायत से चलें, तो ये जिस्म के काम हम नहीं करें।
हमें गुस्सा, ठीक है, बच्चों से गलती हो गई है या बीवी से या शौहर से, तो हम उसको माफ करें। देखो खुदा यीशु मसीह ने हमें ये कहा है कि अगर तेरे कोई एक गाल पे तमाचा मारता है तो दूसरा भी आगे कर दे। तो हम तो गुस्सा कर लेते हैं, नफरत आ जाती है हमारे अंदर और इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं कि इसकी वजह से मैं दुआ नहीं कर सकती, इसकी वजह से मैं रोजे नहीं रख सकती, इसकी वजह से मैं कलाम नहीं पढ़ सकती, मुझे ये गीत नहीं गाने देता। या इस तरह के इल्जाम जो है हम एक दूसरे पर लगाते रहते हैं। तो ये कौन कर रहा है? ये यही शैतान कर रहा है। ये यही वो पुराना अस्तहा जो है, पुराना सांप जो है, वो हमारी ज़िंदगियों में कर रहा है ना? और ये मजबूर करता है कि हम गुस्सा करें। कोई बोल रहा है हमारे खिलाफ या कुछ फ़र्ज़ करें गालियाँ निकाल रहा है या कुछ भी, तो हम कहते हैं, "ओह! मैं बड़ा बर्दाश्त किया।" पर अब तो मुझे बोलना ही पड़ा, है ना? तो यही हमारा असल में टेस्ट होता है, आज़माइश होती है कि हम उस वक़्त कंट्रोल कर लेते हैं, गलबा पा लेते हैं, जीत हासिल कर लेते हैं उन सोचों के ऊपर, है ना? या जो कोई हमारे खिलाफ बोल रहा है। देखिए खुदा यीशु मसीह को जब लेके जा रहे थे तो उसके मुँह पे थूका जा रहा था, उसकी दाढ़ी को खींचा, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। तो क्या खुदा यीशु मसीह आगे से जवाब नहीं दे सकते थे? बोल सकते थे अपनी सफाई में। एक जगह उसने कहा भी, क्या महल सरदार ने, कि तू अपनी सफाई में कुछ बोलता क्यों नहीं? लेकिन खुदावंद यीशु मसीह नहीं बोले अपनी सफाई में कि नहीं-नहीं मैंने तो ये नहीं किया, है ना? लेकिन हम जल्दी से अपनी सफाई पेश करना शुरू कर देते हैं कि नहीं मैंने तो गलती भी नहीं की, ये क्यों मेरा हस्बैंड जो है या मेरा अ, बाप जो है या कोई भी है ना हमारे रिश्तेदार इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं, तो हमने तो ये गलती की भी नहीं है। तो हम बोलना शुरू हो जाते हैं। हालाँकि हम उस वक़्त चुप रहें, हमारी जो गवाही है या हमारा जो इंसाफ जो है, वो खुदावंद देगा, है ना? करेगा। तो हम उस वक़्त जब नहीं बोलते, चुप रहते हैं, तो असल में क्या होता है, हम जीत हासिल कर देते हैं कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बोलते हैं या लड़ाई आगे से करना शुरू कर देते हैं, हमारे अंदर भी उसके लिए नफ़रत आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, बुग़्ज़ भर जाता है हमारे अंदर, तो असल में ये सारे काम कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है ना? तो इसीलिए ये कौन है अ, जो क्या कहते हैं हमें गुमराह कर रहा है। हमें ये मैं कहूँगी कि ये मुकाशवा या भेद खुलने नहीं देता कि जो भी ये काम कर रहा है वो खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। वो उस तख्त तक नहीं पहुँचेगा। तो कौन गुमराह कर रहा है? ये शैतान कर रहा है। वो ये भेद जो है, वो हम मसीहियों पे खुलने नहीं देता। हम समझते हैं हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, नाच-रंग कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, तफ़रके हमारे अंदर। हम एक-दूसरे को ऐसे जैसे ये अभी इसमें क्या पढ़ा कि फाड़ खाने को हर वक़्त तैयार रहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? अपना सत्यानाश कर रहे हैं, है ना? तो जो इस तरह के काम हम कर रहे हैं, सारे ही हम करते हैं कहीं न कहीं। तो जो भी कुछ हम कर रहे हैं, हम फिर उस बादशाही के लिए तैयार नहीं हो रहे। वो जो खुदा यीशु मसीह की बादशाही ज़मीन पे होगी 1000 साल के लिए, उसकी हम तैयारी नहीं कर रहे क्योंकि हम ने अपने जिस्म जो हैं, अपने बदन जो हैं, वो इसको दिए हुए हैं, शैतान को दिए हुए हैं। तो ये किस्में आगे चल के हम देखेंगे कि ये सारी हरामकारियाँ हैं। ये रूहानी तौर पे हम जब अपने बदन हम हमारा शौहर कौन है? खुदा यीशु मसीह। तो हमारे बदन के अंदर वो काम होने चाहिए या हमें वो काम करने चाहिए ये जो यीशु करता है, जो खुदा यीशु मसीह ने किए, नेकी के काम। तहम्मुल वो क्या रूह के फल जो हैं नरमी हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हम ये कर रहे हैं तो इसका मतलब है खुदा यीशु मसीह हमें इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जब हम ये वाले काम करते हैं तो असल में क्या है? शैतान हमारे बदन को यूज़ कर रहा है क्योंकि ये किसकी खूबियाँ हैं? ये किसके काम है ना? ये हसद करना, लड़ाई-झगड़ा करना, गुस्सा करना। तो ये एक मैं कहूँगी कि ये भेद या ये मुकाशवा जो है मसीहियों पे खुलता नहीं है, कि असल में उस वक़्त वो हमारे साथ हरामकारी कर रहा होता है, रूहानी तौर पे। जब हम ये बदन उसको दे देते हैं, गुस्सा कर रहे हैं, लड़ाई-झगड़ा कर रहे हैं, तो कौन इस्तेमाल कर रहा है? हमारा शौहर तो नहीं कर रहा ना?
तो ये पुराना शौहर हमारा जो है, पहला शौहर जो है, वो इस्तेमाल कर रहा है। तो इसलिए मैं कहूँ कि गहरे तौर पे इस भेद को समझने की कोशिश करें कि जब हम हरामकारी करें, एक हमारा बंदा है, अब फ़र्ज़ करें ये जावेद है, तो मैं उसको तो टाइम नहीं दे रही, उसको तो अपना बदन नहीं दे रही कि इस्तेमाल करे। तो जो मेरा पुराना शौहर है, फ़र्ज़ करें जो भी है, या हो सकता है मंगेतर है या कुछ भी है ना, तो उसके साथ मैं बातें करती रहती हूँ, उसके साथ जाती हूँ, उससे के साथ खाती-पीती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन अपने शौहर के साथ नहीं कर रही। तो ये है हरामकारी। सबको ही मैं पता है। लेकिन ये जो रूहानी तौर पे हम करते हैं, इसका मैं कहूँगी कि बहुत सारे हमारे मसीही जो हैं, वो खुल के जो भेद आता है, वो मुकाशफा जो है, वो हमें समझ नहीं आता कि असल में ये हम अपने बदन उसको दे रहे हैं। वो हमारे बदनों को इस्तेमाल कर रहा है। यही पुराना साँप, वो अज़दहा जो है ना? तो इसलिए वैसे लोग जो हैं, जो हरामकारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो नहीं खुदा लेके जाएगा ना, जो अपने शौहर का उसको कोई एहसास ही नहीं है, कोई डर खौफ ही नहीं है हमारे अंदर कि यार मेरी शादी हो गई हुई है और मेरा शौहर है खुदावंद यीशु मसीह, तो ये बदन तो अब उसका है, मेरी मंगनी हुई हुई है। तो उसको तो मैं दे रही नहीं, मैं तो अपने पुराने शौहर के साथ ही टाइम गुज़ारती रहती हूँ। सारा दिन-रात हो सकता है हम यही हमारे ज़हन में गुस्सा हसद और जो खिचड़ी जब हम पकाते रहते हैं कि मैं किस तरह उन्होंने को बदला लवां, है ना? किस तरह उस पे इल्ज़ाम लगाऊँ। तो ये अगर हम कर रहे हैं, तो असल में क्या है? हम सब जो हैं हरामकारी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को खुदावंद यीशु मसीह लेने के लिए नहीं आ रहा। खुदावंद जो है, जो रूह की हिदायत से चल रहे हैं, जो खुदावंद के काम कर रहे हैं, इसीलिए बार-बार हम बात करते हैं कि वो नेक काम जो या वो हुक्म जो खुदावंद ने हमें दिए हैं, जब हम वो करते हैं, तो असल में हम तैयारी कर रहे हैं। फिर खुदावंद जो है हमें कह लें वो मसाले, वो तेल जो है हमारे ऊपर उंडेलता है ना? तो वो ताकि वो हमें हमारे अंदर से किसकी खुशबू आए, खुदावंद यीशु मसीह को, हमारे बादशाह को अपनी खुशबू जो है वो सूँघे उसको स्मेल आए, है ना? कि ये मेरी दुल्हन है। तो इसलिए अगर हम ये जो हमें गुमराह करने वाला है, अगर हम उसकी ही मर्ज़ी को पूरा कर रहे हैं, तो फिर हम उस तरह से तैयार नहीं हो रहे, है ना? तो बाकी की आयतों पे हम फिर बात करेंगे और हम सीखेंगे कि ये जो ये 10 आयत जो है और क्या कहते हैं, ये असल में जो गालिब आए हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है या मर्द बच्चा है, ये उनकी बात हो रही है कि वो जो भाइयों पे इल्ज़ाम लगाता है ना, और वो आसमान पे उस वक़्त खुशी कर रहे होंगे, यानी उस वक़्त आसमान पे जो 7 साल नीचे ज़मीन पे मुसीबतों का दौर होगा, आसमान पे उस वक़्त जो दुल्हन है उसकी जो फ़तह पाके, ये क्योंकि ये जो 11 आयत में लिखा है कि वो गलबा पाके, तो गलबा सिर्फ़ इस अ, वक़्त तक हमने जो सीखा है, सिर्फ़ जो दुल्हन है, उस वो ही पा रही है। उसके अलावा यानी जो शहीद होंगे उन्होंने गलबा नहीं पाया, या बाकी जो इस्राएली थे जो हमने सीखा 1,44,000 उन्होंने गलबा नहीं था पाया। तो इसलिए सिर्फ़ जो दुल्हन है उसने गलबा पाया। इसलिए जो 10वीं और ये 11वीं आयत में जो जिन लोगों का ज़िक्र हो रहा है, वो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है, यानी वो जब गई तो वो खुश होएगी। वो तो आसमान पे खुश होंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि अफ़सोस उन पर जो ज़मीन पे हैं या तरी खुशकी पे हैं या तरी पे हैं। क्योंकि जो पुराना साँप है या अस्थहा है, वो बड़े क्या कहते हैं उसपे कहर से या गया है उन पे। तो इस पे हम थोड़ा-सा फिर बात करेंगे मेरा ख़्याल मंडे को। तो खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी फ़ज़ल दे और रहम करे, तरस खाए, ताकि हम अपने बदनों को अपने दूल्हा, अपने यस्सु को दें, और जो इसकी गुमराही से अ, ये हमें गुमराह कर रहा है ना? कि हम नाफ़रमानी करें, हम गुस्सा करें, नाराज़ हों, लड़ाई-झगड़े करें, हमारे अंदर तफ़रक़े आ जाएँ, हम दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते रहें।
तो और हम अपने बदनों को खुदावंद यीशु मसीह को ना दें, है ना? तो खुदावंद हम सबको फजल दे कि हम अपने बदन सिर्फ अपने दूल्हे के लिए रखें, पाक साफ करें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह हमें सिर्फ इस्तेमाल करे ये बदन, क्योंकि उसके हैं। उसने खून दे के खरीद लिया था इस शैतान से, इस पुराने अजदहा से, है ना? उसने इसके ऊपर फतह पा ली थी और इसके सर को कुचल दिया था और हमें उससे ले लिया था। खून पहले उसने दिया इसको और हमें ले लिया। तो इसलिए हम अब अपने बदनों पे इख्तियार ना रखें। ये बदन खुदावंद यीशु मसीह के हैं, हमारे दूल्हे के हैं। तो खुदावंद आप सबको और मुझे भी फजल दे, रहम करे। गॉड ब्लेस यू। बैक टू सोनिया। ਹਾਂਜੀ, praise the Lord, hallelujah, thank you sister जी। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੇ, ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਐਨੀਬਾਡੀ? ਓਕੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ sister? हाँ जी, हाँ जी, तुसी कहना सोनिया। Hallelujah, 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 praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, Kramti, Tarif, 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 Lord Jesus. Hallelujah. Khudavand da ਧੰਨਵਾਦ Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tarif, Lord Jesus. Hallelujah. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Lord, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Oh, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, Lord, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ 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 Lord, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਹੋ Lord Jesus, ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus, Lord, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ 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 Lord, ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ Lord Jesus, ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੋਚਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਦੇਖਣ ਦੁਆਰਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਧਰਮ ਕੁਆਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਾਂ ਚ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ Lord, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Oh yes Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Oh Lord Jesus, ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ Lord, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Oh yes Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਚ ਜੋ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਚ ਜੋ ਵੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ Lord, ਜੋ ਵੀ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਚ ਪਸੰਦ, ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus, ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗਣ in the name of Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Lord Jesus, ਉਹ ਗੁੱਸਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਹੰਕਾਰ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਚ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗੇ in the name of Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Oh yes Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਲਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਭਰ ਦਿਓ Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
Oh yes, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. ताकि ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ, Lord Jesus. Yes, Lord. ਖੁਦਾਵੰ Yes. ਤਾकि ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, Lord Jesus. Hallelujah. ਖੁਦਾਵੰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ਖੁਦਾਵੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਖੁਦਾਵੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੀਏ ਖੁਦਾਵੰ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੁਰੀਆਂ ਖੁਦਾਵੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਕੱਢੀਏ ਖੁਦਾਵੰ, ਲੋ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦੁਲਹਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਚਦੀ ਹੈ, ਲੋ ਜੀਸਸ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਲੋ ਜੀਸਸ Yes, Lord. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਲੋ ਜੀਸਸ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਦਿਆ ਕਰੋ, Lord Jesus, hallelujah. Oh Yes. yes, Lord Jesus, ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਖੁਦਾਵੰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ, Lord Jesus, ਜੰਗਜੂ ਬਣਾ, Lord Jesus, hallelujah. ਖੁਦਾਵੰ ਤਾकि ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰ, Lord Jesus, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, hallelujah, Lord Jesus. ਖੁਦਾਵੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦਾਵੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਚ Yes. ਖਤਮ ਕਰ, Yes, Lord. Lord. hallelujah. Oh yes, Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰ, Lord ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੁਦਾਵੰ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਚ ਜਾਣੇ Yes. ਲੱਗਣ ਇੰਦਾ Yes, Lord. यीशु के नाम से. ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹਾਂ, Lord Jesus. ਖੁਦਾਵੰ Yes. ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ Yes. ਜੀਸਸ। Oh yes, Lord Jesus. ਖੁਦਾਵੰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਖੁਦਾ ਹਾਂ, Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Yes. ਖੁਦਾਵੰ, Lord Jesus, ਤੇਰੇ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗਾ, Lord Jesus। ਖੁਦਾਵੰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹਾਂ, Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰ ਜਿਹਨੂੰ Yes. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ, ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Yes. Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, Lord. ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ, Lord Yes. Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Oh Lord Jesus, ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ, Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰ, Lord Jesus, ਤੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ Yes. ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭਰ ਦੇ, Lord Jesus, Yes. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Oh yes, Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਖੁਦਾਵੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗਣਾ, Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰ, Yes. Lord ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ 'ਚ ਖੁਦਾਵੰ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, Yes. Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ, Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਖੁਦਾਵੰ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, Yes. ਖੁਦਾਵੰ, Lord Jesus, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਹੋਰ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ, Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ, Lord Jesus, Yes. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Oh yes, Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ, Lord Jesus, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਖੁਦਾਵੰ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ 'ਚ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰ, Lord Jesus, ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰ, Lord ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਖੁਦਾਵੰ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਖੁਦਾਵੰ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ, Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਖੁਦਾਵੰ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹਾਂ, Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰ ਉਹ ਤੇ ਨਾਚ ਖੁਦਾ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ, Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹਾਂ, Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. ਖੁਦਾਵੰ Yes. ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰ, Lord Jesus, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ, Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰ, Lord Jesus, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰ, Lord Jesus, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਖੁਦਾਵੰ ਪਾ ਲਿਆ, Lord Jesus, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। Praise the Lord. Hallelujah. अब हमारे खुदावंद का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक कि खुदावंद यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आज मैंने खुदावंद की हुजूरी को बड़े ही गहरे तौर पे देखा है, और मैंने ऐसे देखा है जैसे फिजा में ऐसे जैसे जो तलवार है वो खड़ी है, मतलब जैसे वो जो रूह की एक होती है। तो खुदावंद ने आज, मैं कहूँगी कि हमारे ऊपर ये वाला मसा जो है
डेला है कि हमें रूह की जो तलवार है वो चलानी आ जाए शैतान के ऊपर। जब भी वो हमारी तरफ आए हम उस रूह की तलवार को इस्तेमाल करें और उस पे फ़तह हासिल करें। तो अगर आपने भी कुछ देखा है या कुछ महसूस किया है, खुदा ने आपको टच किया तो आप शेयर कर सकते हैं। जी, किसी ने कुछ देखा है या मैसेज में कुछ आपको फ़ील हुआ? ओके जी। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ सुन जी। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਤੇ ਔਰ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੇ हुँ, ਗੁਣ हुँ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਹਨਾ ਤੇ ਮੈंने हाँ, ਇਦਾਂ हाँ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਚਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ हालेलुया। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हुँ, प्रेज़ गॉड। Praise the Lord. हालेलुया। कि जी, बिल्कुल खुदावंद ने हमें वो मसा दिया है और मुझे खुद ये फ़ील हुआ कि ऐसे जैसे कोई एक ताकत है, वैसे तो रोज़ ही है कि लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि जैसे वाक़ई में मैंने खुद भी देखा कि कोई ताकत है जो अ, खुदावंद ने मुझे दिया है। तो मेरा ईमान है कि आपको भी खुदावंद ने छुआ है और वो नया ज़ोर, नई ताकत जो है वो दी है। तो गॉड ब्लेस यू ताकि हम फ़तह पे फ़तह हासिल करते जाएँ। जी, किसी और ने कुछ कहना है? नहीं तो फिर हम बंद करें। अ, जो भाभी हैं, वो भाभी पप्पू मुझे ऐसे फ़ील हुआ है जैसे उनको खुदा ने या उधर मैंने उस घर को मैंने ऐसे जब सोनिया प्रेयर कर रही थी और जब मैंने भी प्रेयर की, तो खुदावंद की हुज़ूरी को वहाँ पे देखा है। भाभी आपको अगर कुछ महसूस हुआ है, जब हमने रोटी और पानी के लिए दुआ की है या अभी तो आप शेयर कर सकती हैं क्योंकि मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि वहाँ पे ऐसे खुदावंद का गहरा बादल आपके ऊपर छाया हुआ है या सुमेरा के ऊपर। तो आपको कुछ खुदावंद ने टच किया तो आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, प्रेज़ कल मैंने तेल पे मैंने प्रेयर करवाई थी ना, अपने तेल हुँ, के लिए जब प्रेयर की, हुँ, तो ये 2 दिन उस दिन से यानी कि सारी रात खाँसती रहती थी। तो फिर रात को जौन-सा ना वो मसा वाला तेल मैंने इसके माथे पे भी लगाया, उसका निशान बनाया और गले पे भी सारा, इसके सीने पे, और मैं हुँ, दुआ हुँ। करती जा रही थी। तो खुदावंद ने इसको शिफ़ा दी है और ये दोपहर को भी सोई रही है और रात भी सारा सुकून से सोई रही है ना। हालेलुया, अभी भी प्रेज़ गॉड। तकरीबन सोई हुई है तब से ना। हुँ। तो मुझे सुमेरा के लिए भी ऐसे फ़ील खुदा हुआ का मैं शुक्र क्योंकि है। मेरे ना ऐसे बॉडी में कुछ होना शुरू हो गया था, हुँ, ऐसे जैसे कोई ताकत निकलती है या कुछ करंट सा जो था मुझे लगा था जब हम सुमेरा के लिए प्रेयर कर रहे थे हुँ। और जब हड्डियों के हाँ लिए जी, जो आपकी हड्डियों में तो तब मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि हाँ खुदावंद ने जी। वो तो मुझे ऐसे लगा जैसे खुदावंद अभी भी मैं बोल रही हूँ तो ऐसे मुझे मेरे अंदर जैसे कुछ हो रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि खुदावंद ने आप दोनों को कह रहे हैं कि हाँ जी, खुदावंद ने आपने टच बाजू के किया है। लिए की थी ना, तो मेरा हाथ दर्द कर रहा था। हाँ, पूरा मुझे कुछ आवाज़ नहीं आई लेकिन राइट मुझे बाजू है ना। फ़ील हुआ है कि खुदावंद ने आपको हाँ शिफ़ा जी, दी और सुमेरा को प्रेज़ भी। गॉड, हालेलुया। मतलब मैंने कुछ सुना नहीं है, कोई आवाज़ नहीं आई, कुछ देखा नहीं लेकिन खुदावंद की एक गहरी हुज़ूरी जो थी मैंने आप दोनों पे जो है वो महसूस किया है। अभी भी मैं जब बोल प्रेज़ रही थी गॉड, तो मेरे हालेलुया। अंदर वो एक करंट सा जो है वो लग रहा था जैसे कँपकपी हाँ जैसे जी, आ जाती है। तो मेरा ईमान है खुदावंद ने अपनी बेटी को सुमेरा को भी और आपको भी शिफ़ा दी है। गॉड आमीन, ब्लेस यू। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आप ईमान से खुद भी रिसीव करें और सुमेरा को भी बोलना कि हाँ जी। तो और भी किसी ने अगर खुदावंद ने आपको टच किया है तो आप शेयर कर सकते हैं। ये खुदावंद के नाम को जलाल देना था ज़रूर बताया करें।
ये मुझे नहीं कोई कि बाजी ने शायद दुआ की है, लेकिन हम खुदा उनके नाम को जलाल देने के लिए बताया करें। ओके, चलें ठीक है फिर जी। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे और जो नया ज़ोर, नई ताकत हमें मिली है आज, उसको हम इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू जी।